سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آج اکنامک سروے رپورٹ پیش کی گئی جس میں ہماری معیشت کے تمام جو اہم بڑے ٹارگٹس ہیں وہ مس ہوتے ہوئے نظر آئے۔ سب سے پہلے اپنا تبصرہ بتائیے گا کہ آپ ان نمبرز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حالات جو ہیں وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہتری کی طرف واضح طور پر نہیں جا رہے، اور ود آل ڈیو ریسپیکٹس جو پاکستان اکنامک سروے میں جو اعداد شمار پیش کیے ہیں ان میں کچھ مسائل ضرور موجود ہیں۔ اب میں واضح طور پر آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ شرح نمو 3.7% پیش کیا گیا ہے پچھلے سال کا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ واضح طور پر اس ریٹ، حالانکہ یہ لو ہے، یہ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ 2-3 ہیں کہ ایک تو یہ کہ کپاس کی فصل بہت بری طرح سے گری ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے طور پر ہمارے زرعی شعبے کی جو شرح نمو ہے اس میں ریفلیکٹ نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف جو ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر متاثر ہوا ہے جنگ کے بعد، وہ بھی خاص طور پہ فلی ریفلیکٹڈ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو انفارچونیٹلی واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ افراط زر کی رفتار بھی جو انہوں نے پیش کیا ہے کہ تقریباً صرف 6%، اس وقت اس کی رفتار سینسٹیو پرائس انڈیکس کے تحت کم از کم 15% تک پہنچ چکی ہے۔ تو اعداد شمار جو پیش کیے گئے ہیں پاکستان اکنامک سروے میں وہ زیادہ تر مارچ تک کے ہیں اور ایسٹیمیٹڈ ہیں 9 مہینے کے، اور جو اب لاسٹ 3 مہینے جو ہیں جو ختم ہونے والے ہیں ان میں جنگ کی وجہ سے خاص طور پر کافی نگیٹو اثرات ہوئے ہیں جو فلی ریفلیکٹڈ نہیں ہیں سروے میں۔ رائٹ، اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں ضرور جاننا چاہوں گی، چونکہ حکومت اب یہ برملا کہہ رہی ہے کہ اس کا فوکس اسٹیبلائزیشن پہ ہے اور آگے چل کے جو ہے وہ گروتھ کے لیے وہ تمام میجرز لیے جائیں گے، بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم اور پاکستان جو ہے وہ ایک اور سال اسٹیبلائزیشن کا افورڈ کر سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مڈل ایسٹ کی جنگ جاری رہتی ہے، اور پچھلے 2-3 دن سے تو جنگ تقریباً پھر سے شروع ہو گئی ہے، اور اسٹریٹ آف ہارموز اگر بند رہتا ہے تو تیل کی قیمت 35 سے 40% اونچی رہے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا سالانہ بل جو ہے وہ $14 ارب کے قریب ہے، اور جب 35 سے 40% اضافہ ہو جاتا ہے تو تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر کا ہمارے جو درآمدات ہیں ان میں اضافہ اگلے سال ہو سکتا ہے، اور اضافہ ہم نے آلریڈی دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے فضل سے ہمارے جو تحصیلات ہیں وہ ماشاءاللہ ریمیٹنسز اچھے آئے ہیں اس پچھلے مہینے، پارٹلی بیکاز آف عید، اور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آنے والے سال میں مشکل حالات ہوں گے اگر جنگ جاری رہتی ہے یا حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں مڈل ایسٹ میں، تو تیل کی قیمت اونچی رہے گی، ہمارے ایکسپورٹس متاثر ہوں گے اس لیے کہ یورپین یونین کے ممالک ڈاؤن جا رہے ہیں ریسیشن میں، اور وہ سب سے بڑا ایکسپورٹ مارکیٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اگلا سال یہ کہنا کہ ہم ایک طرح سے اسٹیبلائزیشن سے آگے بڑھ کر گروتھ کی طرف جائیں گے، ابھی تک یہ کہنا ذرا مشکل ہے۔ پر ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی اس بات سے کہ جب انہوں نے کہا کہ معاشی گروتھ کا ہدف 4% حاصل نہ ہونے کی وجہ ایران جنگ ہے، اور کیونکہ مارچ 2026 تک وہ کہتے ہیں کہ معیشت تیزی سے اوپر جا رہی تھی، کیا واقعی ایسا تھا؟ یہ پورے سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکنامک ان کی مینجمنٹ ہی خراب تھی جس کے نتیجے میں ہمیں یہ نمبرز نظر آ رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے 3 کوارٹرز میں کچھ یقیناً ہمارے نمبرز اتنے برے نہیں تھے،
और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल से बेहतरी आ रही थी। और यकीनन हुआ ये है कि अभी उन्होंने मार्च तक की फिगर्स तो एस्टिमेट किए हैं क्वार्टरली। तो जीडीपी जो एस्टिमेटेड है वो पहले 9 महीने के बेसिस पे ही एस्टिमेट हुआ है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, इसलिए कि साल पूरा नहीं हुआ है। और 3 क्वार्टर्स के बेसिस पर एस्टिमेट किया गया है। अगर वाकई फोर्थ क्वार्टर को फुल्ली रिफ्लेक्ट करेंगे और उसमें ख़ास तौर पे कपास की वाज़े तौर पर फसल में कमी ले इंक्लूड करेंगे, तो फिर ग्रोथ रेट 3.7 से भी गिरकर तकरीबन 3% तक खुदा न खास्ता आ जाएगी। राइट। और डॉक्टर साहब, इस साल जहां आपने एक्सपोर्ट्स का भी जिक्र किया, $35 अरब के जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट था वो भी हासिल नहीं हो सका और $28 अरब की बरामदात हो सकी। ये कितनी कोई परेशान कुन सूरत हाल है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बावजूद इसके कि मुसलसल इस बात के हवाले से वो विजन बताया जाता है लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करता इन नंबर्स में। सबसे बड़ा मसला जो हो चुका है वो ये कि माशाल्लाह हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ख्याल ये है कि पाकिस्तान बहुत मुस्तहकम हो चुका है। रुपए की कदर पिछले 2 साल से वही है, जबकि इसके नतीजे में हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें मुनासिब कीमत रुपए में नहीं मिल रही है। करेंसी इस वक्त हमारी कम अज कम 5 से 7% ओवर वैल्यूड है। और आईएमएफ तो कह रहा है कि साल के एंड तक आपको 310 तक ले जाना चाहिए था, जो कि हम नहीं लेके गए हैं। तो ये जो करेंसी में जो आर्टिफिशियली स्ट्रेंथन जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है, ये एक्सपोर्ट्स के लिए मुनासिब नहीं है। और इसके नतीजे में हमारे बरामदात जो हैं, दरामदात जो हैं वो भी बढ़ते रहे हैं और बरामदात कम रहते रहे हैं। राइट। और डॉक्टर साहब, अब अगले क्योंकि कल के रोज़ ये बजट पेश करने जा रहे हैं, सो आपकी उस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा कि बजट के से तवक्कुआत क्या हैं, क्योंकि एक तरफ से जहाँ पर हम हुकूमत को देखते हैं कि वो मुसलसल टैक्स बढ़ा रही है, ये भी कहा कि फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, लेकिन इसका खमियाजा तो अल्टीमेटली आवाम नहीं उठाया है। टैक्स बढ़ाने की भी उसमें उसी सेक्टर को मुसलसल टैक्स किया गया और जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट में है, टैक्स नेट उतना ब्रॉडन होते हुए नजर नहीं आया। और फिर फिस्कल डेफिसिट भी जो कम हुआ तो उसका फ़ायदा एटलीस्ट बोरोइंग में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, जो कि हमें पिछले 4 सालों की निस्बत में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हमें बढ़ती हुई बोरोइंग दिखाई दी। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पोजीशन अनफॉर्चुनेटली है कि टैक्स का निज़ाम जो है वो बहुत ही इम्बैलेंस्ड है। 3 शोबे, जिसमें सैलरीड क्लास, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये 3 बेशुमार बोझ इन पर लगाया गया है। अब हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनती सेक्टर जो है उस पे जो टैक्स का बोझ है वो तकरीबन 3.5 गुना है नेशनल एवरेज से। तो इस तरह तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो पिछले कुछ सालों से इजाफे की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है। कोशिश ये होनी चाहिए आने वाले बजट में और फेडरल बजट में कम से कम कोशिश तो बता रहे हैं कि करेंगे कि जो आपके दुकानदार, बड़े दुकानदार, उन पर टैक्स का निज़ाम बढ़ाएं। दूसरी तरफ जो प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, जिसमें बहुत इजाफा हुआ है वैल्यूज़ में, उस पे कॉरपोरेट सेक्टर में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बड़े घराने हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन पर मुनासिब टैक्स ले आएँ, कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। और प्रोविंसेस जो हैं वो ख़ास तौर पे जो ज़री इनकम टैक्स है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि टैक्स का निज़ाम बैलेंस्ड हो, टैक्स बेस फैले और जो इस वक्त के ज़्यादा सेक्टर जिन पे बहुत बोझ है उसको कम करने की कोशिश की जाए। सो यानी डॉक्टर साहब, इवन इफ़ वी टेक अ लुक एट द लास्ट 4 years, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ये 5वां बजट कल पेश करने जा रही है, सो ये मेजरली टैक्स नेट ब्रॉडन करने में 4 सालों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो ये नाकाम रहे हैं मेजरली इसको ब्रॉडन करने में। बिल्कुल
अब आप ये देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के सिलसिले में IMF पिछले 2 साल से पीछा पड़ा हुआ है। और हमारा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर टैक्स रेट वही हो जो दूसरे इनकम्स पर है, तो कम से कम 800 अरब की रेवेन्यू हो सकती है बड़े ज़मींदारों से। और आपको सुन के शायद थोड़ी सी हैरत हो कि इस साल का टारगेट रेवेन्यू जो है, जो सबसे बड़ा प्रोविंस है पंजाब का, 10.5 अरब है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। दूसरी तरफ IMF ने कहा था कि रिटेलर्स और होलसेलर्स से टारगेट आप सेट करें 300 अरब का, और पाकिस्तान सिर्फ 40 अरब हमारे FBR रेवेन्यूज जनरेट कर पाया है। तो ये जो अशरफिया हैं पाकिस्तान के, माशाल्लाह बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े प्रॉपर्टी ओनर्स, बड़े बड़े दुकानदार, ये टैक्स देने के इस तरह रुझान उनका बहुत कम है। राइट। और डॉक्टर साहब, आई कीप आस्किंग यू दिस इन एवरी प्रोग्राम, अब लोगों को आपने कंपेयर टू लास्ट ईयर, आर दे बेटर ऑफ? जहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पावर्टी की बात करते हैं, अफरात ज़र की बात करते हैं, और लोगों की मयार ज़िंदगी की बात करते हैं, आपने कैसे ये पिछले माली साल की निस्बत इस साल वो रुझान देखें? बात दरअसल ये है कि अगर आपको, जिसे कहते हैं कि बेरोजगारी का पैमाना कम करना है, जो एक तरफ पॉपुलेशन सेंसस कह रहा है 22%, दूसरा लेबर फोर्स सर्वे कह रहा है 7%, ये आपस में रिकनसाइल ही नहीं कर पाई है हुकूमत, तो उसको कम करने के लिए शरह नमू कम से कम 4.5 से 5% होना ज़रूरी है। इस साल अगर हम बाकी 3.7 भी एक्सेप्ट कर लें शरह नमू, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वाज़े तौर पर बेरोज़गारी में इजाफ़ा और गुर्बत में भी इजाफ़ा हुआ है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पिछले दिनों खाना पीने की अशिया की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, इसलिए कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह बढ़ गया है जब से तेल की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये साल जो गुज़रा है उसमें हमारे अवाम जो हैं, लोग जो हैं, उनके हालात में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हो सकता कुछ कमी ही आई हो, बेहतरी बहुत कम इसकी गुंजाइश लग रही है। डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि इस हुकूमत का एक जो उनकी उम्मीदें थी, या आवाम को भी जो वो उम्मीद दिलाना चाहते थे, वो बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से थी, जिसमें बड़े बड़े दावे आपने देखा लास्ट फ्यू इयर्स में किए भी गए। पाकिस्तान अब तक सरमायाकारी उस तरह से अट्रैक्ट करने में नाकाम क्यों नज़र आ रहा है? देखिए, इसके बहुत से वजूहात हैं। जिस मुल्क से बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स छोड़ के जा रहे हैं, आपने तो देखा होगा पिछले कुछ अरसे से प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शेल वगैरह बड़े बड़े इदारे जी। पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें नए इन्वेस्टर्स को आने में इंसेंटिव और ख़तरा नज़र आता है, इंसेंटिव नज़र नहीं आता है। और दूसरी तरफ जब शरह नमू किसी एक मुल्क का 5 या 6% से कम हो, तो वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स के नहीं आते हैं, उनके बहुत चॉइसेस मौजूद हैं, और वो दूसरे ऐसे मुल्कों में जाते हैं जहाँ तेज़ रफ्तारी है, सेल्स में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त ये हालत नहीं है, और इस बार लगे रहा है कि फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 40% कमी आने का ख़तरा हो चुका है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।